इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Christmas is a time to celebrate. Christmas celebration का समय है. So I've got my best clothes and want to look sparkling for Christmas. और इसीलिए मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़ों को निकाला और मैंने कहा चमकना चाहिए है क्योंकि ये क्रिसमस से आनंद मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि क्रिसमस के समय है, क्योंकि 5 दिन रह गए हैं क्रिसमस के. I welcome you all to Moments of Grace. Moments of Grace में आप सबका स्वागत है. अभी हम लोग टेस्टिमनी के सेक्शन में जाने वाले हैं and you all have prayed for somebody who had typhoid and there are more testimonies also. But listen to this man, how he got healing. You all prayed for him and all glory to Jesus, all glory to God, all glory to the Holy Spirit. And I want to remind you, there are few days left. Continue to talk to people. आप लोगों के पास जाइए जिनके पास कोई नहीं जाता. Share the gospel with them. Tell them about Jesus. Tell them about his salvation. Tell them that Jesus is Lord. और उनके साथ कुछ शेयर कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए, उनके दिल को उठाइए क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ बोझ है. अगर आप 20 लोगों को रीच आउट कर सकते हैं, ग्रेट. इफ यू कैन रीच 5 people, great. If you can reach 2 people, great. Just do it. And then on Christmas Day, share it with us. We will not be able to take everybody's sharing, but किसी की तो ले सकते हैं. So, see you sharing on Christmas. Join sharp at 11 on Zoom for Christmas. And let's just go into the testimony. Hello everyone, I am really full of gratitude and very overwhelmed right now to share this testimony with you. I cannot explain the beauty of these of the prayers. Thank you to Auntie James and my friend Bhavya who connected me with her and prayed for my dad. My dad is a neuro patient and recently had multiple episodes of seizure late in the night, and we could not find an ICU or bed in Delhi due to the corona and farmers' protest as well. The roads were blocked. Somehow we've been able to get in touch with the doctor and find an ICU or bed in the in one of the hospitals in Faridabad. The prayers actually worked. My father was out of ICU within 2 days, and the next day we were home. Thank you for praying for him. Thank you. These prayers have helped me to be courageous, and you won't believe that we did not even were in the need of an ambulance to come back to home, and I brought back my dad in a cab with no restrictions, with no police verification, even when the protests were on. So the prayers are really, really powerful. Keep praying. Thank you, Auntie James. Thank you, Bhavya, for connecting. Thank you for praying for my dad. Thank you. मेरा नाम सुनीता है। मैं आशिमा दीदी के चर्च में आती थी। मेरे डॉग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। डॉक्टर ने इसको कह दिया था इसके बचने की उम्मीद कम है। मैंने फिर पास्टर आशिमा दीदी से प्रेयर कराई। आप सबने प्रेयर करी। अब डॉग की तबीयत ठीक है। आप सबका बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम विंसन है। मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। एक छोटी सी गवाही खुदा के लिए देना चाहता हूँ और ताकि आप लोग इस गवाही के द्वारा उत्साहित हों। मुझे टाइफाइड हुआ था और टाइफाइड के बाद मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब खुदा की दया है। खुदा ने चंगाई दी और आप सब लोगों की दुआएं हैं जिन्होंने मुझे याद रखा दुआ में। एक और गवाही है मेरे पास कि मेरे पास जॉब नहीं था इस पेंडेमिक टाइम में काफ़ी समय से, और परमेश्वर ने मुझे एक जॉब दिया है। मैं उसका धन्यवाद देता हूँ कि उस अच्छे जॉब के लिए, अच्छी जगह के लिए जो खुदा ने मुझको वापस अपने स्थान पर खड़ा किया है। जब मैं निराश था पर खुदा ने मुझे फिर से मनोबल दिया। खुदा अपने बच्चों को कभी भूलता नहीं है। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी नौकरी के लिए, टाइफाइड की चंगाई के लिए, और सबसे बड़ा मैं दुआ और धन्यवाद देता हूँ सिस्टर अशीमा के लिए जिन्होंने प्रेयर करके उनके चर्च के लिए जिन्होंने मेरे को
मेरे को दुआओं में याद रखा, उनकी कलीसिया ने, उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। खुदा आपकी कलीसिया को बहुत आशीषित दे। खुदा का एक बार फिर से धन्यवाद हो। आमीन। मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए गवाही देना चाहता हूँ। 27 तारीख को मेरी शादी थी और 28 तारीख को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। मुझे डबल निमोनिया हुआ, उसके बाद में लंग इन्फेक्शन और उसके बाद में सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आशिमा दी जिन्होंने मुझे याद रखा अपनी दुआओं में और मेरे लिए उन प्रभु से प्रार्थना की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं, अपनी दुआओं में याद रखा है। और एक बात कि जब हमारे साथ कोई नहीं होता तभी वो सिर्फ प्रभु होते हैं, तो आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा। आमीन। ये भाई साजन हैं जिसके लिए हम सब ने बहुत प्रार्थना की थी। अभी इन्होंने बहुत हल्के से बताया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे और एक समय था कि ऐसा लगता था कि हम खो देंगे। आपने लगातार इनके बारे में सुना है, लेकिन अब भी हॉस्पिटल से बाहर आ चुके हैं और इनके लिए प्रेयर करते रहिएगा कि ये जो थोड़ा बहुत जो कोल्ड कॉफ है वो भी ठीक हो जाए यीशु के नाम से। थैंक यू गॉड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड थैंक यू पीपल फॉर प्रेइंग फॉर हिम। We thank God for all these awesome testimonies. All glory be to God. सारी महिमा और सारा आदर परमेश्वर को मिले। अगर परमेश्वर ना करते चमत्कार तो संभव नहीं था, इसलिए हम सारा आदर और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर हम उन लोगों को ब्लेस करते हैं जिन्होंने प्रार्थना की। वी ब्लेस दोस पीपल हु हैव प्रेड। थैंक यू फादर, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन। सो लेट्स गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड क्विकली। आज हम सीखने जा रहे हैं क्रिसमस क्या है, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड क्रिसमस, एंड जीसस कौन है, व्हाई ऑल दिस बिग स्टफ अबाउट जीसस, इतनी सारी तारीफें जीसस के बारे में, क्या है ये सब, क्या है। सो वी विल लर्न टुडे। Let's just pray for that also. God, speak to our hearts through your word. Let it be all about you. In Jesus' name, amen. Great. So, सबसे पहले क्रिसमस का वर्ड जो है वो दो शब्दों से बना है, क्राइस्ट एंड मस। क्राइस्ट का मतलब यीशु, अभिषेकित, और मास का मतलब है वो प्रार्थना सभा जो उनके जन्मदिन पे हर साल होती है। सो क्रिसमस, he is the anointed one, and he was born on a particular date, but the whole world decided कि हम 25 तारीख को उनको मनाएंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे। आप जानते हैं ना, हमारे देश के महात्मा गांधी जी जिन्होंने सत्याग्रह लीड किया और आज उनको पूरा विश्व जानता है, मानता है और उनका आदर करता है। और क्योंकि उन्होंने इतने महान काम किए हमारे देश के लिए कि आज हमारा देश उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करता है 2 अक्टूबर। The whole world honors Mahatma Gandhi ji because of what he gave to our country and to the world, the example of Satyagraha. And he is revered and honored by every Indian and every person in the whole world. And we celebrate his birthday also. In India, we have a holiday on that day and we honor him. In the same manner, Jesus did something very, very great for humanity. यीशु मसीह ने कुछ बहुत महान करा जिसकी वजह से उनका जन्म यादगार रहा और उसको याद करते हैं लोग। प्लस उनके जन्म के समय पे कुछ अद्भुत बातें थी जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सो फॉर ऑल द हिस्ट्री बफ्स, प्लीज नोट दैट जीसस का जन्म 6 BC या 2 BC के आसपास हुआ। यीशु मसीह मरियम और यूसुफ के संतान थे फिजिकली। Jesus was born around the 6th century BC or the 2nd century BC, around that time, and he was the son of Mary and Joseph. यीशु मसीह एक कारपेंटर थे। Jesus was a carpenter, and actually he was the son of God who walked the earth. And Jesus के बारे में बहुत सारे historians ने लिखा है। You can read of contemporary historians writing about him. यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे इतिहास के लेखकों ने लिखा है और ये प्रूव किया गया है कि यीशु मसीह सचमुच में एक इंसान थे जो इस दुनिया में आए और उन्होंने इस दुनिया में रहे। उनकी मृत्यु का अंदाजा लगाया गया है कि वो लगभग 33 इयर्स ऑफ एज में 3 अप्रैल और शायद 33 AD में उनकी डेथ हुई और 5 अप्रैल को वो जी उठे। हालेलुया। जीसस एक इंग्लिश वर्ड है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईसोस, और ये एक्चुअली ग्रीक में कहा जाता है जोशुआ।
I know two Joshua, so I'm happy that Joshua is one of the names here. और क्राइस्ट कोई सरनेम नहीं है. क्राइस्ट एक्चुअली का मतलब है द अनॉइंटेड वन. तो यीशु ने ऐसा क्या किया जो हम उन पे विश्वास करें? क्रिसमस की कहानी के बाद सुनेंगे हम लोग. तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं क्रिसमस की कहानी को समझना, आप उठाएंगे मत्ती का सुसमाचार और लूका का सुसमाचार और वहां से पढ़ सकते हैं पहले 2-3 अध्यायों में. If you want to know the story of Christmas, pick up the Bible and read the book of Matthew, the Gospel of Matthew and Luke, and read chapter 1 and 2 of both the books, and you will have a fair idea about the strange happenings and the awesome happenings and the supernatural happenings around the birth of Jesus. और जब आप ये पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो अलौकिक बातें क्या थी यीशु मसीह के जन्म के आसपास. तो सबसे पहले मरियम जो यीशु मसीह की माता थी, वो एक यंग लड़की थी और उनकी एंगेजमेंट यूसुफ से हुई थी और उनके पास एक स्वर्गदूत आया जिसका नाम था गैब्रियल. Mary was betrothed to Joseph and an angel came to her one night. उस एंजल ने उनसे कहा मैरी से कि आप एक बेटे के साथ होंगी. तो जो जीसस का जन्म था वो बगैर किसी आदमी के था. इट वॉज अ बर्थ फ्रॉम अ वर्जिन. ये कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? हम लोग मानते हैं ना कि परमेश्वर ने आदम को अपने हाथों से बनाया और उसको पहले मिट्टी ली, मिट्टी को अपने हाथों से शेप किया और उसमें फूका. डू वी बिलीव दैट? सो व्हाई इज दैट नॉट पॉसिबल? God used the same principle. It is because of the power of the Holy Spirit that Jesus was born. It had no role of a man. किसी भी आदमी के साथ जुड़ के ये बच्चा पैदा नहीं हुआ था. यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे. So I hope you get that. पर जब यूसुफ को मरियम की प्रेगनेंसी का पता चला, उसे दुख हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो उसे इससे पहले कि पब्लिकली उसको लेकर के और लोग उसे पत्थरों से मार दे, क्योंकि ये गुनाह था कि कोई प्रेग्नेंट हो विदाउट द हस्बैंड, तो अडल्ट्री माना जाता था इसको. तो उन्होंने कहा मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, किसी को बताऊंगा नहीं. लेकिन उसी रात स्वर्गदूत आया और उसने कहा उसको छोड़ना नहीं है. वो गर्भवती है पवित्र आत्मा की मदद से और जो बच्चा है उसका नाम जीसस होगा और वो सबका उद्धार करेगा, वो लोगों को बचाएगा उनके पापों से. उसी समय सीजर अगस्टस ने डिक्लेरेशन दी कि सबकी पूरी जनगणना होगी, तो सब लोगों को अपने अपने शहर जाना था. यूसुफ नाजरत में था तो वो मरियम को लेकर के नाजरत से बतलहम की ओर गया जो कि उसका घराना था. वो दाऊद राजा के घराने का था. Joseph belonged to the house of David and he had to go back to Bethlehem. So he went to Bethlehem and he couldn't find a place where Mary could give birth. All the inns were full. सारे hotels booked थे और जोसेफ को समझ में नहीं आया कि वो मैरी को कहाँ आराम दे. Finally, एक अस्तबल में, जानवरों के तबेले में या a stable, that's where he found some place. And Jesus के लिए जगह नहीं थी. Mary gave birth to Jesus in a stable. मरियम जी ने यीशु मसीह को जन्म दिया स्टेबल में. खुदा का बेटा जो कि पवित्र आत्मा द्वारा उनके अंदर बीज आया था, उसका जन्म एक स्टेबल में, एक बहुत हम्बल जन्म हुआ. और जब वो उसके लेटने की जगह नहीं थी जिसमें गाय को चारा खिलाया जाता है, चारा दानी में उन घास लगा करके उस पे लिटाया गया. He was born in a manger. Isn't it amazing? उसी रात कुछ शेपर्ड्स, कुछ चरवाहे जो भेड़ों को चराते थे, भेड़ों को चराते हुए लेटे हुए थे, उनके सामने बहुत बड़ा हुजूम, बहुत सारा ग्रुप एंजल्स का आया और वो स्तुति गान और महिमा करने लगा और उन्होंने शेपर्ड्स को बताया कि दुनिया का मुक्ति दाता जन्म लिया है और उसको चरनी में रखा गया. तुम उसे पहचान लोगे, जाओ और जाकर के उसके पास जाओ, क्योंकि वो एक गुड न्यूज है, वो एक अच्छी खबर है और वो बड़ा आनंद सारे लोगों के लिए लेकर के आ रहा है. और तब शेपर्ड्स गए और उन्होंने जैसा जैसा स्वर्गदूतों ने कहा था वैसा वैसा उन्होंने देखा और उन्होंने उसको दंडवत किया और मेरी को और जोसेफ को भी बताया. उसी समय के आसपास 3 बुद्धिमान इंसान, 3 वाइज मैन को एक सितारा दिखा और उन्हें समझ में आया अपनी विद्या के द्वारा कि एक महान राजा पैदा हुआ है. और सचमुच में यीशु राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं, लेकिन वो इंसानी रूप में आए थे. और वो सितारे का पीछा करते करते
बेथलेहम पहुंचे और उन्होंने उनको जब यीशु मसीह मिले, क्योंकि सितारा वहां रुक गया, उन्होंने जा करके देखा और उसको सिजदा किया। उन राजाओं ने जो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए थे, फ्रैंकिंसेंस, मर एंड गोल्ड, वो सारा गिफ्ट उन्होंने यीशु मसीह के सामने अर्पण किया और झुक करके उसको वर्शिप किया और बहुत महिमा करी परमेश्वर की, और फिर वो चले गए। तो ये कुछ ग्रेट बातें थी। और 8वें दिन यीशु मसीह का सर्कमसिशन हुआ, खतना हुआ, और साथ में उनका नाम रखा गया जो स्वर्गदूतों ने पहले ही यूसुफ को और मैरी को बताया था। उसका नाम जीसस रखा गया, जोशुआ रखा गया, ईसोस रखा गया। मोसेस के नियमों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस, द प्यूरिफिकेशन राइट्स हैपेंड। प्यूरिफिकेशन के सारे काम किए गए और एक खुदा के दास थे सिमियन, देयर वाज अ मैन ऑफ गॉड, अ प्रॉफिट सिमियन। God had promised him that he will not die till he holds Jesus in his hands. परमेश्वर ने उसको वायदा किया था कि तू जब तक नहीं जाएगा इस दुनिया से, जब तक तू यीशु मसीह को अपने हाथों में ना ले लेगा। और आत्मा के द्वारा the Holy Spirit led him to come into the temple. पवित्र आत्मा जी ने उसको लीड किया टेम्पल में आने के लिए, और वो टेम्पल में आया, उन्होंने यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया। प्रॉफिट सिमियन ने कहा, My eyes have seen salvation. मेरी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। एंड प्रॉफिटेस एना ने भी ऐसा ही कहा, वो भी आई वहां टेम्पल में और उन्होंने भी यही बातें बोली। प्रेज गॉड। सो अब हम एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखते हैं। इट्स एन एनिमेशन ऑन द बर्थ ऑफ जीसस। आई होप इट विल एनकरेज यू एंड पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव, तो आप इवेंट्स को समझने पाएंगे। आइए देखते हैं। जीसस का जन्म। एक समय की बात है। नाजरत गांव में मैरी नाम की एक लड़की रहती थी। जल्द ही मैरी का विवाह जोसेफ नाम के एक लड़के से होने वाला था। एक रात मैरी सो रही थी। उसे कुछ आवाज सुनाई दी। मैरी ने अपनी आंखें खोली। सामने पीले रंग की रोशनी थी। अचानक एक देवदूत प्रकट हुआ। मैरी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ गैब्रियल, ईश्वर का दूत। मैरी, चिंता मत करो, ईश्वर ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा है। उसने तुम्हें एक महान काम के लिए चुना है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि ईश्वर ने मुझे किसी महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है। मैं तैयार हूँ। बहुत जल्द तुम्हें एक बेटा होगा। तुम्हारा बेटा ईश्वर पुत्र जीसस के नाम से जाना जाएगा। वो लोगों के लिए महान काम करेगा। बेटा, ये कैसे संभव है? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। मैरी को धक्का लगा, पर वो शांत रही। मुझे सम्मानित करने के लिए आभार। देवदूत लुप्त हो गया। अगले दिन उसने जोसेफ को देवदूत और ईश्वर की योजना के बारे में बताया। दोनों ने तुरंत विवाह कर लिया। मैरी गर्भवती हुई। नाजरत के राजा ने नए नियम घोषित किए। राजा अपनी प्रजा की जनगणना करना चाहता था। जोसेफ बेथलेहम नाम के दूसरे गांव से था। मैरी और जोसेफ ने तय किया कि वो बेथलेहम जाएंगे। नाजरत से बेथलेहम का सफर काफी लंबा था। दोनों कई दिनों तक लगातार चलते रहे। गर्भवती मैरी के लिए वो सफर बड़ा ही कठिन था। जब वो बेथलेहम पहुंचे तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। गांव लोगों से भरा हुआ था। जोसेफ ने मैरी को एक पेड़ के नीचे बिठाया और वो रात बिताने के लिए कोई जगह खोजने चला गया। उसने कई दरवाजे खटखटाए, पर उसे कोई भी कमरा नहीं मिला। मैरी का प्रसव करीब आ रहा था। दोनों जगह ढूंढने लगे ताकि मैरी बच्चे को जन्म दे सके। मैरी ने कहा, चिंता मत करो, ईश्वर हमारे साथ हैं। उन्हें एक खाली तबेला दिखा। दोनों ने वहां आसरा लिया। जोसेफ ने सूखी घास लेकर मैरी के लिए बिस्तर बनाया। बहुत ही सुंदर रात थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। जल्द ही मैरी ने सुंदर बालक जीसस को जन्म दिया। मैरी खुश थी। संसार का तारक जीसस धरती पर आ चुका था। जोसेफ ने
घास लेकर छोटा सा बिस्तर बनाया। बालक जीसस उस पर आराम से सो रहा था। बेथलेम के पास टीले पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों के साथ थे। अचानक आकाश में रोशनी चमकी। वो इतनी तीव्र थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली, वहां एक सुंदर देवदूत खड़ा था। देवदूत ने कहा, चिंता मत करो, मैं एक बड़ा समाचार लाया हूं। आज बेथलेम में एक बच्चे ने जन्म लिया है। एक दिन वो इस संसार का तारक बनेगा। चरवाहे हक्का बक्का हुए, पर उन्होंने सोचा बालक को देख आते हैं। जब वो बेथलेम पहुंचे, उन्होंने तबेले में मैरी, जोसेफ और बालक जीसस को देखा। वो जीसस के सामने झुक गए। उनका कलेजा खुशी से भर गया। चरवाहे खुश थे क्योंकि उन्हें उनका ईश्वर मिल गया। वो वहां से आनंदित होकर निकले। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और बाल जीसस के बारे में बताया। इस तरह संसार के तारक जीसस के धरती पर आने की खबर चारों ओर फैल गई। Somebody in my office asked me, is Santa Claus the father of Jesus? किसी ने मेरे ऑफिस में पूछा कि क्या Santa Claus जीसस के फादर हैं? I said no, वो तो एक ट्रेडिशन है, वो तो it's not a real thing. वो लोगों ने बनाया है just to add some story to it. He is not a real person. वो एक सच्चे इंसान नहीं है, वो एक imagination है, वो एक ट्रेडिशन बन गया है। लेकिन Christmas is about Jesus Christ. क्रिसमस सिर्फ क्रिश्चियंस का त्योहार नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का त्योहार है, सब मनाते हैं, एवरीबडी एंजॉयज इट। तो जीसस के इतने अद्भुत तरीके से पैदा होने के लिए हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ही इज समबडी VIP. The way Jesus is born and all those things that are being prophesied over him, we understand he's a very, very important person. He's a VVIP. सबसे पहली बात, Jesus is God. He was the Son of God. When we look at Philippians chapter 2 verse 6 to 11, we realize he was God who came in the form of man. He took the form of man. He was in the likeness of man, found in human form. And the Bible says Jesus is Lord. यहाँ पे वचन कहता है यीशु मसीह ही प्रभु हैं। वो साक्षात परमेश्वर थे, मनुष्य के समान बने, मनुष्य के जैसे। And then he also became a servant. So ये आप पाएंगे बाइबल में। ओके, तो और क्या इंपॉर्टेंट है? जीसस इज द सन ऑफ गॉड। जॉन चैप्टर 5 वर्स 18 से वे परमेश्वर को अपना पिता ही कहते थे। ही इवन वाज कॉलिंग गॉड हिज फादर। जीसस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो पैदा हुए एक वर्जिन बर्थ के द्वारा। वो पवित्र थे और वो इंसान बने। गॉड बिकेम मैन थ्रू वर्जिन बर्थ। परमेश्वर इंसान बने एक कुंवारी से जन्म लेकर के। और जब हम देखते हैं मैथ्यू 1:20 वहां लिखा है, स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, डू नॉट फियर टू टेक मैरी एज योर वाइफ, फॉर दैट विच इज कंसीव्ड इन हर इज फ्रॉम द होली स्पिरिट। दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यीशु मसीह इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो इस पूरी दुनिया के मसाया हैं, बचाने वाले हैं। ही इज द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन वी लुक एट एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, वहां लिखा है, किसी भी दूसरे में उद्धार नहीं है, क्योंकि इस आकाश के नीचे लोगों को कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा। Read in English, salvation is in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. And of course, our favorite scripture, John 3:16. Read it, please. Jesus is important because he heals. अभी आपने सुना भाई का टाइफाइड ठीक हो गया। कल एक सिस्टर आई थी, उनके पापा इतने ज्यादा बीमार थे। He had COVID and he was also very sick earlier. He was so sick, but when all of you prayed and we prayed, Jesus went to the hospital and healed him. वो एक बहन थी, उनके पापा इतने बीमार थे कि उनका बचना मुश्किल था, लेकिन जब आपने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना करी, यीशु मसीह हॉस्पिटल गए, उन्होंने उनको जिंदा कर दिया। He is alive and healthy and kicking. Praise God. So let's look at Acts chapter 10 verse 38.
You know of Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power, and how he went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. हम लोग हिंदी में पढ़ते, तुम यीशु नासरी के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति के द्वारा उसका अभिषेक कैसे किया था, और वो उत्तम कार्य करता था. हीलिंग इज उत्तम, ही इज अ गुड वर्क करता हुआ तथा उन सबको जो शैतान के बस में थे चंगा करते हुए चारों ओर. और वो कैसे घूमता रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था. He is also God because his name is Emmanuel, God with us, and God was with Jesus also. Jesus is important because he changes lives. I know of a person who was a dacoit in India. यीशु मसीह जरूरी है, important है, क्योंकि वो जिंदगियां बदल देते हैं अंदर से बाहर. मैं जानती हूँ एक ऐसे खुदा के दास को जो पहले डाकू थे, जो पहले गंदी गंदी बातें बोलते थे, लोगों को मारते थे, उनका लूट लेते थे, उन्हें परेशान करते थे. वन डे, एक दिन यीशु मसीह उनसे मिले और वो बदल गए और वो एक बहुत बड़े प्रचारक मिले और वो हमारे घर आए थे. There was this man who was a dacoit who used to speak rough language, beat people, kill people, and humiliate people. And when Jesus met him, he transformed. He served his sentence, and then he became a man of God. And what about the dacoit on the cross who accepted Jesus? और उस डाकू का क्या, जिसने यीशु मसीह को क्रूस को ग्रहण किया और जीसस ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा. टुडे यू शैल बी विद मी इन पैराडाइज. सो जीसस चेंज लाइव्स. ही चेंजेस ugliness into beauty. जो लोग थके हुए हैं, परेशान हैं, जो लोग अपने आप को बुद्धू समझते हैं, जिनको कोई दुनिया वैल्यू नहीं देता, God brings dignity to them. यीशु मसीह उन्हें इज्जत देते हैं. एक मेरी मैगडलीन थी बाइबल में, हम ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 2 में देखते हैं. She was a prostitute and there were so many demons inside of her. And then Jesus delivered her. She became a good human being and she followed Jesus and served him with his disciples. यीशु मसीह ने मेरी मैगडलीन के अंदर से सारे दुष्ट आत्मा निकाले. वो व्यभिचार में थी, वो वैश्य का काम करती थी और परमेश्वर ने उनकी जिंदगी को बदला. वो एक अच्छी स्त्री बनी और उन्होंने यीशु मसीह के चेलों के साथ और भी स्त्रियों के साथ मिल करके यीशु की सेवकाई की और वो बदल गई. ये है प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलते हैं. ज़ाकियस की लाइफ, जब हम ज़ाकियस ल्यूक चैप्टर 19 वर्स 1 to 10 में पढ़ते हैं, ज़ाकियस एक टैक्स कलेक्टर था और टैक्स कलेक्टर से घृणा की जाती थी क्योंकि वो लोगों से अन्याय करके पैसा लूटते थे. उनको कोई पसंद नहीं करता था. लेकिन जब यीशु मसीह उससे मिले, उसकी जिंदगी बदल गई. जो इंसान सारा दिन पैसा जमा करने की सोचता था, वो लोगों को, गरीबों को पैसा देना शुरू कर दिया उसने. उसका मन अब पैसे में नहीं था, उसकी जिंदगी बदल गई थी. पहले उसकी जिंदगी का मिशन था पैसा और अब उसका मिशन पैसा नहीं था. He didn't care about money. It was Jesus. It was to live a good and righteous life. Zacchaeus was an evil person. He was a tax collector. People hated him because he extorted money from people. But when he met Jesus, his life transformed. Earlier, his goal was to pursue money, and now his goal was to pursue Jesus, and he didn't care about money. And of course, those who don't care about things, God gives them whatever they require for those who are worrying. So Jesus changes lives. Then we know about the lepers. हम कोड़ियों के बारे में जानते हैं. जब कोड़ियों को बीमारी होती है, उनको गंदा समझा जाता है, उन्हें दूर रहना पड़ता है. वो अपनी फैमिली के साथ, अपने समाज के साथ नहीं रह सकते. उनका शोषण होता है, उन्हें दूर रखा जाता है. बट जब यीशु मसीह उनकी जिंदगी में आए, यीशु मसीह उनको चंगाई दी और वो वापस इंस्टॉल हुए अपने फैमिलीज में. They could enjoy their families and social life again. The lepers were healed by Jesus. Earlier, they were ostracized and left alone. But when Jesus came into their lives, he healed them and he transformed their lives. And that is what Jesus will do in your lives. जब अंधों को यीशु मसीह मिले, अंधों की लाइफ लिमिटेड थी. They can't see. They have to depend on anybody. Jesus opened their eyes and they can depend on their family and be a blessing to so many others. जब Jesus अंधे लोगों को मिले, he उनकी अंधापन दूर करा और उनको जिंदगी दी, आजादी की जिंदगी. Praise God. This is how Jesus changes lives. That's why he's important. And today he will change your life also. Are you ready? Continue in this message. हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, right? We all want heaven में क्या हो रहा है? And you know, heaven में हमारा representative है. Jesus is important because he is a representative in heaven. यीशु मसीह जरूरी इसलिए क्योंकि वो स्वर्ग में हमारे लिए बैठे हैं. और रोमन्स 8:34 में लिखा, ऐसा कौन है जो उन्हें दोषी ठहराएगा? मसीह यीशु वह तो जो मारा गया और
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसे फिर जलाया गया। जीसस क्राइस्ट रोज अगेन, जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है और वो हमारी ओर से विनती भी करता है। Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, and who indeed is interceding for us. यीशु मसीह सिर्फ हमें represent नहीं कर रहे हैं heaven में, but यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, intercede भी कर रहे हैं। जब भी हम कुछ गलती करते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं, Jesus prays for us. दुनिया के लोग प्रे करें ना करें, Jesus prays for us. And this is what you have to recognize why Jesus is important. It's like having your own person in the government representing you. जैसे कि कोई गवर्नमेंट में आपका बंदा हो और वो आपको represent करे. Jesus is representing you in the kingdom of heaven, where we will go soon. According to Matthew chapter 24 verse 30, Jesus will judge the world. He will come back and he will judge the world. And he's important because of that. Then will appear in heaven the sign of Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा, तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। एक टाइम आ रहा है जब यीशु मसीह अपने लोगों को दुनिया के लोगों से अलग करेंगे। वो लोग जो यीशु मसीह के कहलाते हैं, जिनके दिल में यीशु मसीह हैं, वो अलग होकर के यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करेंगे, और जो बाकी हैं वो एक ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। Those who are separated, who did not bring Jesus into their heart, will go to a different place where there is no presence of God, and that place is called hell. और उस जगह का नाम है नर्क। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब के अंदर यीशु मसीह जो इतने VVIP हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, पाए जाएं, ताकि जब जजमेंट हो हम यीशु के साथ उठा लिए जाएं। I pray that when the time of separation will come, we will be found with Jesus in our heart, and we will be seated with Jesus in heavenly places when he'll come to take us, and not in hell but in heaven with God our Father and Jesus Christ. ये पूरी दुनिया सिन से इन्फेक्ट हो गई, क्योंकि रोमन्स का 5वां अध्याय में चाहती हूं आप पढ़ें कि एक इंसान के पाप से पूरी दुनिया में पाप आ गया, और वो पाप हम सब में है। इसीलिए हमें एक मुक्तिदाता चाहिए जो हमारे पापों के लिए बलिदान बनके मर जाए, और जब वो मर जाएंगे हम उस बलिदान की वजह से कहेंगे कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर दीजिए, क्योंकि यीशु का लहू या उस बलिदान का लहू बहा। Jesus died for our sins. This was told to even Joseph. ये यूसुफ को भी बताया गया था कि वो सारी दुनिया के पापों को खत्म करने के लिए आएगा। And Jesus became the second Adam. यीशु मसीह दूसरे आदम बने। जैसे एक आदम के पाप से पूरी दुनिया पापी हो गई, वैसे एक आदमी के, अभी मैं आदमी बोलूंगी, एक इंसान के बलिदान से, पवित्र लहू के बहने से पूरी दुनिया पाप से आजाद हो गई। अगर हम इस बात को मानेंगे, अगर आज आप इस बात को मानेंगे, ये पॉसिबल है। अब आप कहेंगे समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, कोविड शुरू हुआ और सबको, कितने लाखों करोड़ों लोगों को हो गया है, लेकिन कोविड को निकाला कैसे जाए, हमारी इस पूरी रेस को, ह्यूमन रेस को बचाया कैसे जाए। हम सब इंतजार कर रहे हैं वैक्सीन की। वाओ, जब वैक्सीन आएगा हम सबको वैक्सीन लगेगा, व्हेन द वैक्सीन विल कम विल ऑल बी इनोक्युलेटेड एंड वी विल बी कोविड रेजिस्टेंट। हम कोविड को नहीं पाएंगे, हमें कोविड नहीं लगेगा दोबारा। In the same manner, Jesus came. He's the vaccine. He's the good news. People were waiting for Jesus to come, and he came. And when his blood vaccinates us, we are set free from sin. और जब उनका लहू हमें मिलता है, वो हमारे जिंदगी में आता है, हम उनके लहू की इस कुर्बानी को मानते हैं, हम बच जाते हैं, हमें वैक्सीनेशन मिल जाता है। इनफैक्ट जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं उन्हें कोविड ही नहीं हुआ। All the people who are around us who believe in Jesus, because Jesus the vaccination and his sacrifice as a vaccination is, we did not get COVID and God kept us COVID free. Amen. He's the ultimate vaccination. Get him in your heart. आप दुनिया इंतजार करें वैक्सीनेशन का, wait for the vaccination of Jesus. He will not allow COVID to come near your doorstep in Jesus' name.
लेकिन आपकी चॉइस है, वैक्सीनेशन आप लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी आपकी चॉइस है। आप यीशु मसीह को मन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। लेकिन आज मैं प्रार्थना करती हूं कि यीशु मसीह को आप दिल में जरूर बुलाएंगे। और एक और बात है यीशु मसीह की जो जरूरी है, और ये आखिरी बात है, कि वो सब के लिए हैं, वो सारी दुनिया के लिए आए हैं, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं आए, वो हर एक इंसान के लिए आए हैं। ये वैक्सीन जो कोविड की है, हर इंसान के लिए, इट इज नॉट लुकिंग एट कंट्रीज और विमेन और मेन और ओल्ड और यंग, इट इज फॉर एवरीबडी, एवरी रेस, एवरी काइंड ऑफ पर्सन। कोविड की वैक्सीन के सामने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबके लिए। जैसे बीमारी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, वो सबके लिए आई थी, वैसे वैक्सीनेशन भी सबके लिए, और वैसे ही यीशु मसीह का उद्धार हम सबके लिए है। आमेन। लेट्स लुक एट जॉन चैप्टर 6 वर्स 37. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. Wow. जो मेरे पिता के पास आता है, मैं उसे कभी नहीं लौटाऊंगा, कभी नहीं। क्या आप खुदा के पास आना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू कम टू जीसस? मैं चाहती हूं कि आप क्रिसमस की इंपॉर्टेंस समझें। Why Jesus came on this earth? जीसस इंपॉर्टेंट क्यों है? आई बिलीव आपको समझ में आया है, और हम चैट पे आपको लिख करके दे रहे हैं, आप इसे हम आपके व्हाट्सएप पे भी भेज रहे हैं। कीप इट विद यू, वाई जीसस इज इंपॉर्टेंट। और क्योंकि उन्होंने इतने महान काम किए, उन्होंने इस पूरी जगत को पाप से छुटकारा दिलाया और हक दिया कि हम उनके साथ परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। हम गॉड ने जो भी सारी जागीर, ऑल द इनहेरिटेंस दैट गॉड हैज केप्ट फॉर जीसस इज फॉर यू एंड मी, with Jesus and in Jesus. तो क्या आप चाहते हैं यीशु मसीह आपके दिल में आए? This great God who is VVIP, he should come into your heart. Pray after me. परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने पाप किए हैं और हमारे पूर्वजों ने पाप किए हैं। एडम ने पाप किया और उससे सारा जगत पाप से भर गया। ये हमें समझ में आ गया है। हमें इस पाप से मुक्ति चाहिए है। हमारे सारे पापों को क्षमा कर दीजिए आदम तक। प्लीज फॉरगिव अस सिंस राइट अप टू एडम। वॉश आवर सिंस विद द सैक्रिफिशियल ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बलिदान के लहू से हमारे सारे पापों को हटा दीजिए। Come into our heart, Jesus. यीशु मसीह हमारे दिल में आइए। We believe, हम विश्वास करते हैं आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। We believe you died and you rose again on the third day and you're seated at the right hand of God and you are Lord. हम believe करते हैं कि आप ही प्रभु हैं। God, tear every record against us in Jesus' name that Satan holds. जो भी हिसाब किताब शैतान के पास है हमारे विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए परमेश्वर। Tear every record and reconcile us to God. हमारा रिश्ता हमारे पिता से फिर से हो जाए। In Jesus' name. Wash us with the blood of Jesus. Break all the curses upon our life. हमें यीशु मसीह के लहू से धो दीजिए और सारे श्रापों को तोड़ दीजिए। Thank you God for the greatest gift that is Christmas. धन्यवाद परमेश्वर क्रिसमस के गिफ्ट के लिए जो कि यीशु का बलिदान है। Thank you God for the gift of Christmas. और हमारी मदद कीजिए कि आपका बलिदान परमेश्वर जो आपने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, Lord help us that we will also participate in this gift that you gave us, this sacrifice of your son, that we will tell others this whole message, कि हम इस मैसेज को शेयर करेंगे और दूसरों को बताएंगे ताकि वो भी उद्धार पाएं। Thank you, Father. Thank you for blessing us. Lord, we thank you for the Christmas gift. In Jesus' name I pray. Amen. जैसे God ने हमें Christmas gift दिया है, हम दूसरों को Christmas gift देंगे. We will tell them about this gift of the sacrifice of Jesus, this vaccine against sin, permanent vaccine against sin. हम ये मैसेज सबके पास पहुंचाएं। इस मैसेज को प्लीज आप शेयर करें। This is what God wants. मैं चाहती हूँ हम लोग एक गाना गाए। क्यूट सी लड़की ने गाना गाया। इट्स अ वेरी स्वीट सॉन्ग। आई नो यू लव इट। इट्स अ फेमस सॉन्ग फ्रॉम अ ग्रुप, बट इस बच्चे के मुंह से गाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। इट सेज लाइक दिस, लॉन्ग टाइम अगो इन बेथलेहेम, सो द होली बाइबल सेज, सब कुछ बाइबल कहती है। इस गाने के अनुसार बहुत साल पहले बेथलेहेम में, जैसा बाइबल कहती है, मैरी का एक बेटा हुआ जो कि क्रिसमस के दिन पे हुआ। हार्क नाउ हियर द एंजल्स सिंग, A king was born today. और स्वर्गदूतों ने शोर मचाया आनंद का कि एक राजा उत्पन्न हुआ है, कि मैन, इंसान अब हमेशा के लिए जीवित रहेगा, इटर्निटी खुदा के साथ एंजॉय करेगा क्रिसमस के दिन की वजह से। और यही संदेश है
आज का इस गाने में आइए सुनते हैं। Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. The simple wash, they float by night, they see a bright new shining star. They hear I choir sing a song, the music sing to come from afar. Now hear the angels sing, a King was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. We thank God for this lovely song and this message. I hope you're blessed today. खुदा के लोगों, प्लीज जाकर के लोगों को जीसस की ये स्टोरी बताइए, ये मैसेज शेयर करिए अगर आप नहीं बता सकते. People of God, please share this message with others and share the Christmas message with those who nobody reaches. Let hope be born in their hearts also. और इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ. Praise the Lord और जय हिंद.